لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش، خشک سردی کا زور ٹوٹ گیا۔ آلودگی کے سائے بھی چھٹ کے جاڑے نے اپنا رنگ جما دیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ گڑھی شاہو، مال روڈ، جیل روڈ پر رمجھم، صبح کے وقت فیروز پور روڈ، گلبرگ میں ہلکی بارش، درجہ حرارت 12 ڈگری پر آ گیا۔ شہر اور گرد و نواح میں بوندا باندی سے موسم سرد ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش گلبرگ میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شاہدرہ، چبرچی اور گڑھی شاہو میں بادل برسے۔ شملہ پہاڑی اور ہربنس پورہ میں بارش ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ اور گرد و نواح میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ جوہر ٹاؤن، مسند، کوٹ لکھپت، گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں بھی بارش ہوئی۔ باگڑیاں، رائمنڈ روڈ، کینال ویو، مغل پورہ کے علاقے بھی بھیگ گئے۔ شہر کا درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش جاری رہے گی۔ شہر میں ہونے والی بوندا باندی سے فضائی آلودگی میں بھی کمی آ گئی۔ لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 212 ریکارڈ کی گئی۔ فیز اے ڈی ایچ اے میں آلودگی کی شرح 237 رہی۔ یو ایس کانسٹنٹ میں آلودگی کی شرح 198 اور جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 186 ریکارڈ کی گئی۔ لاہوریوں پر ٹیکس کا نیا بوجھ لادنے کی تیاریاں۔ یکم جنوری سے 50 لاکھ سے زائد کی پراپرٹی پر ٹیکس لگے گا۔ ڈی سی ریٹ پر منتقلی سے 7 لاکھ اضافی پراپرٹیز سسٹم میں شامل۔ جبکہ رینٹل سسٹم پر موجود 17 لاکھ ٹیکسیبل یونٹ 25 لاکھ ہو گئے۔ پراپرٹی ٹیکس کو کیپٹل ویلیو پر منتقل کرنے کے لیے تیاریاں۔ شہری تیاری پکڑ لیں۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں سے مزید ٹیکس نکلوانے کی تیاری پکڑ لی۔ یکم جنوری سے 50 لاکھ سے زائد کی پراپرٹی پر ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے یکم جنوری سے پراپرٹی ٹیکس کے ڈی سی ریٹ پر منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ سمری حکومت کو بھجوا دی گئی۔ فیصلہ حکومت کرے گی۔ ایکسائز حکام کے مطابق ڈی سی ریٹ پر منتقلی سے 7 لاکھ اضافی پراپرٹی سسٹم میں شامل ہوئی ہیں۔ موجودہ رینٹل سسٹم پر 17 لاکھ سے زائد ٹیکسیبل یونٹ تھے، جو اب 25 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ ایکسائز حکام کے مطابق پرانے ٹیکسیبل یونٹس میں ٹیکس میں اضافے کی صورت میں رعایت دی جائے گی۔ نئے سسٹم کے نفاذ سے حکومت کو اربوں روپے اضافی پراپرٹی ٹیکس وصول ہوگا۔ سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن کا دائرہ کار وسیع، سہولت آئل اینڈ گیس اور مائکرو فائنانس بینکوں کو فراہم۔ گوشوارے جمع کروانے کی سہولت مزید 2 سیکٹرز کو دے دی گئی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے رواں سال سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن فروری میں متعارف کروائی تھی۔ شہری آسانی سے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکیں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ سنگل سیلز ٹیکس کے ذریعے گوشوارے جمع کروانے کی سہولت مزید 2 سیکٹرز کو دے دی گئی۔ دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے سنگل سیلز ٹیکس کی سہولت آئل اینڈ گیس اور مائکرو فائنانس بینکوں کو فراہم کی گئی۔ ٹیکس پیئر سنگل سیلز ٹیکس کے پورٹل پر ایک بار ہی ریٹرن آسانی سے جمع کروا سکے گا۔ واضح رہے کہ پی آر اے نے رواں سال سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن فروری میں متعارف کروائی تھی۔ حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ 1 ماہ کے دوران گھی اور آئل 55 روپے لیٹر تک مہنگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 6 ماہ سے گھی اور آئل دستیاب ہی نہیں۔ کم آمدنی والا طبقہ دوہری اذیت کا شکار۔ مارکیٹ سے مہنگے داموں گھی اور آئل خریدنے پر مجبور۔ اعلیٰ حکام سے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ۔ شہر کے غریب طبقے کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر گھی اور آئل دستیاب نہیں، اور اوپن مارکیٹ میں 1 ماہ کے دوران گھی اور آئل 46 روپے سے 55 روپے فی کلو گرام تک مہنگا ہو گیا۔ گزشتہ 6 مہینوں سے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر گھی اور آئل کی سپلائی نہیں پہنچ سکی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز گھی اور آئل سے خالی پڑے ہیں۔ شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز پر درجہ اول، درجہ دوم اور سوم کا گھی اور آئل میسر نہیں ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 1 ماہ کے دوران درجہ اول 55 روپے اور درجہ دوم کا گھی اور آئل 46 روپے مہنگا ہوا ہے۔ درجہ اول کی قیمت 570 روپے اور درجہ دوم 530 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ صارفین کہتے ہیں حکومت بتائے وہ کہاں جائیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رشوت لینے کا الزام۔ گرین ٹاؤن میں شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ 1500 سے 2500 تک رشوت مانگی جاتی ہے۔ ملازمین پورے پیسوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، پھر 2000 واپس لے لیتے ہیں، مظاہرین کا الزام۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے رشوت کی مد میں لٹنے لگے۔ گرین ٹاؤن میں مرد حضرات اور خواتین کا عملے کے خلاف احتجاج۔ شہری کہتے ہیں 1500 سے 2500 تک رشوت مانگی جاتی ہے۔ بھائی 2000 2500 روپیہ دے رہے ہیں نا، ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ جو دوسرا بندہ ہے نا 1000 1500 کہتا ان کو پیسے نہیں دیتے۔ پیسے بھی دے رہے ہیں پھر بھی نہیں دیتے۔ جو 2000 2500 روپیہ دے رہے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں۔
दूसरे बंदे के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। खवातीन ने बताया अगर रिश्वत न दी जाए तो बायोमेट्रिक करवा लेते हैं मगर एक पैसा नहीं देते, पूरे पैसों के साथ वीडियो बनवाते हैं, फिर 2000 रुपए वापस ले लेते हैं। 6 बजे के आए हैं लेकिन वो उन्होंने फिंगर नहीं लगाई, वो कह रहे हैं आपके पैसे नहीं आए। हम भी जरूरतमंद है, हमारा भी कुछ करें। हर माह इसी तरह होता है, अमला 1500 से 2500 तक पैसों की कटौती करता है। हम गरीब हैं, हमारे लिए 2000 रुपए की अहमियत है। 10,000 रुपया है और मेरा अंगूठा लगवा के और फिंगर लग गए, तो उसके बाद उन्होंने 2000 हमने नहीं दिया, हमें पैसे ही नहीं दिए। हमारे लिए 2000 की भी अहमियत है। ने आला हुकाम से अपना हक दिलवाने की अपील की। कहते हैं हम पर होने वाले जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं, हम लावारिस हो चुके हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42 लाहौर। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गोहर एजाज की क़यादत में बोर्ड दुखी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिना अस्पताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर रहनुमाओं ने मरीजों और डॉक्टर के लिए शानदार सहूलियात की फ्राहमी पर बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन जिना अस्पताल के सदर डॉक्टर हमजा नज़ीर और डॉक्टर काशिफ खान ने दीगर अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। YTA ने जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कारकर्दगी को शानदार करार दिया। YTA नुमाइंदों ने कहा कि चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर गोहर एजाज की क़यादत में दुखी इंसानियत की आला मिसाल कायम की गई है। YTA जिना अस्पताल लाहौर, YTA पंजाब हमेशा उस इंतजामिया जो डॉक्टर्स दोस्त हो, मरीज दोस्त हो, उसके साथ दामे दिरमे कदमे सुखने शाना बशाना उनके साथ खड़ी है और उनके तमाम इक़दामात को सराहती है। डॉक्टर काशिफ ने कहा कि मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए 3 वक्त का खाना, मेहमान खाना, जदीद सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तनसीब, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर काम गोहर एजाज के विजन का अमली नमूना है। डॉक्टर हमजा नज़ीर ने भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े डायलिसिस सेंटर का क़याम, की तमाम लिफ्टों की मरम्मत और तज़ीनो और आइश, ब्रेस्ट कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर क्रोनिक मूजी बीमारियों के लिए आला मियार की मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात की फ्राहमी, जदीद सिमुलेशन पर मुश्तमिल स्किल लैब का क़याम, मेरिट पर सस्ती नीलामी से अस्पताल के करोड़ों रुपए की बचत के तमाम इमरान को मुबारकबाद देते हैं। बात यह कि जो YDA किसी भी हॉस्पिटल की होती है उसका काम ही है कि वो चीज़ों को, इश्यूज़ को पॉइंट आउट करे और उस पर जो जितने भी जो साहिब किरदार लोग हैं जो इक़्तिदार रखते हैं वो उसको पॉइंट आउट करने के बाद उनको एड्रेस करे। YTA नुमाइंदों ने कहा कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने खिदमत का जो मेयार कायम किया है वो दीगर अस्पतालों के लिए काबिल तकलीद है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। बिजली की कीमतों में भारी भरकम इजाफा, सार्फिन बिलों की अदायगी करना छोड़ दी। बिल्स अदा न होने से लेस्को को 39 अरब के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। बिलों की रिकवरी 96% तक रिकॉर्ड की गई है। 100% ना हो सकी, मामला नया रुख इख्तियार करने लगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला नया रुख इख्तियार करने लगा। सारिफीन ने बिजली के बिल्स अदा करना कम कर दिए। लेस्को को 96% रिकवरी के साथ 39 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। अदम अदायगी की वजह से लेस्को को अरबों रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के बिल्स अदा न होने से लेस्को को 39 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लेस्को में बिजली के बिलों की रिकवरी 96% तक रिकॉर्ड की गई है। 100% रिकवरी ना होने से गुज़िश्ता माली साल में अरबों रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि कीमतें बढ़ने की वजह से सारिफीन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है, ताहम इसके बावजूद बिलों की अदायगी उनके लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। गजुमत्ता सवा रोड की गलियां खस्ता हाल, जगह जगह मौजूद घड़े आमदोरफ्त मुतासर करने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि धूल और मिट्टी में जहां सफरी मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गलियों की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। मॉडल टाउन इत्तिफाक अस्पताल रोड से मुल्हिकार से दराज से खस्ता हाल गलियों की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं कि हर जगह मलबा बिखेर दिया गया है। शहरी कहते हैं कि गलियों में बजरी फैलाकर तामीर का काम भी रुक गया है। इलाके के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया से अपील है कि गलियों की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाया जाए। अपर मॉड से मुल्हिका मियां मीर कॉलोनी के मकीनों के लिए लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा हो गया। मुरम्मत न होने के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 3 साल से बंद है। रिहायशियों का कहना है कि 2 किलोमीटर दूर दरबार से पानी भरकर लाते हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल करने का मुतालबा किया है।
निगलसन रोड हाजी कैंप लंडा बाजार के करीब वाक़ फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत का शिकार हो चुका। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके गायब, टाइलें खस्ता हो चुकी। 6 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ब्यूरोक्रेसी में भी आला सतह पर तकर्रो तबादले हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने IG मोटरवे की तैनाती कर दी है। राजा रिफत मुख्तार IG मोटरवे पुलिस तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। राजा रिफत मुख्तार पुलिस सर्विस के 24वें कॉमन से हैं। वो IG सिंध भी रह चुके हैं। इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। ब्यूरोक्रेसी में भी आला सतह पर तकर्रो तबादले। विभागी हुकूमत ने IG मोटरवे की तायुनाती कर दी है। राजा रिफत मुख्तार IG मोटरवे पुलिस तायुनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। अफसरान की कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। ग्रेड 5 से ग्रेड 15 के अफसरान और एहलकार हेड ऑफिस से तलब। FIA लाहौर ने 80 सब इंस्पेक्टर 40 SI मांग लिए। शहरियों की मुश्किलात में कमी आ गई। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। FIA लाहौर ने हेड ऑफिस से अफसरान मांग दिए। ग्रेड 5 से ग्रेड 15 के अफसरान और एहलकार मांगने के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक FIA लाहौर ने 80 सब इंस्पेक्टर 40 ASI मांगे हैं। हेड कांस्टेबल की तादाद बढ़ाने के लिए 30 एहलकार मांगे गए हैं। याद रहे कि रवां साल FIA साइबर क्राइम विंग में 56,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। अफसरान की कमी के बायस सिर्फ 222 मुकदमात का इंदराज हो सका है। महकमा स्पेशलाइज्ड L 456 हेड नर्सेज भर्ती करेगा। भर्ती के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भिजवा दी। ग्रेड 17 की 113 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स और डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स की भर्ती के लिए रिक्वेजिशन अरसाल की गई है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ 456 हेड नर्सिस भर्ती करेगा। भर्ती के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भिजवा दी। ग्रेड 17 की 113 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स और डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स और ग्रेड 18 की 32 चीफ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स की भर्तियों के लिए भी रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाई गई है। हाल ही में महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 3004 नर्सों को भर्ती किया गया है और अब नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती का दूसरा मरहला पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत शुरू किया जा रहा है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद का कहना है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिस की कमी को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है।